When you commit a murder, commit homicide, or child abuse, when you do rape or kidnapping, so all those kind of things are crime against a person. क्या आपके घर में कोई बंदा डोमेस्टिक अब्यूज़ तो नहीं कर रहा? क्या आपके घर में कोई इस तरह तो नहीं है कि कोई क्रिमिनल है, कोई आपके फादर, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, राइट? समवन इन योर फैमिली हु इज कमिटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ क्राइम, तो ये लर्निंग वहाँ से भी हो जाती है. व्हाट हैपेंड विद सलमान तासीर साहब, राइट? वो जब हुआ उसके बाद अभी इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट टू डू प्रोफाइलिंग ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल. उनकी प्रोफाइलिंग करें ताकि वी कम टू नो कि वेदर दे आर फिट टू डू सिक्योरिटी, टेक ओवर द सिक्योरिटी ऑफ ड्यूटी. हेलो एवरीवन, आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि एक करेक्शनल साइकोलॉजिस्ट हैं और पिछले 4 साल से ही इज़ वर्किंग इन प्रिजन डिपार्टमेंट. Let me introduce Mr. Adil Ali. Thank you for being here with us, Adil. Thank you, Ramsha, for inviting me. Adil, मुझे ये बताइए कि you're a correctional psychologist and it's a subdomain of forensic psychology. तो हम शुरू करते हैं इससे कि forensic psychology क्या होती है? Forensic psychology is a very new field. पाकिस्तान में आपने बहुत कम ये नाम सुना होगा. Forensic psychology basically deals with when you apply psychological theories to assist law or criminal justice system. इसमें आपकी कोर्ट्स आ जाती हैं, इसमें आपका प्रिजन सिस्टम आ जाता है जिसको कहा करेक्शनल फैसिलिटीज़, राइट? सो वेयर आई वर्क फॉर प्रिजन्स डिपार्टमेंट ना. सो प्रिजन्स इज बेसिकली द करेक्शनल साइकोलॉजी की एप्लीकेशन है जो विद इन फोरेंसिक साइकोलॉजी व्हेन यू अप्लाइड. सो व्हेन यू वर्क विद क्रिमिनल बिहेवियर, मॉडिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, व्हेन यू वर्क विद ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ इशूज़ ऑफ इनमेट्स इनसाइड द जेल. फिर इसी तरह से व्हेन यू वर्क विद कोर्ट्स रिगार्डिंग द इनमेट्स मेंटल हेल्थ स्टेटस के, उसके बारे में जब आप बात करते हैं, सो दैट इज़ बेसिकली फोरेंसिक साइकोलॉजी व्हेन यू डीलिंग विद द लीगल सिस्टम विद द कोर्ट्स. और फिर इसके अलावा व्हेन यू आर वर्किंग विद द लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल, जिसमें पुलिस आ गई, जिसमें आर्मी आ गई, जिसमें एयरफोर्स के ऑफिशियल्स आ गए, राइट? उनकी ट्रेनिंग्स, उनकी प्रोफाइलिंग, एंड स्पेशली इन द बैकग्राउंड ऑफ वो जो व्हाट हैपेंड विद सलमान तासीर साहब, राइट? सो वो जब हुआ उसके बाद अपनी इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट टू डू प्रोफाइलिंग ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल, कि उनकी प्रोफाइलिंग करें ताकि वी कम टू नो कि वेदर दे आर फिट टू डू सिक्योरिटी, टेक ओवर द सिक्योरिटी ऑफ ड्यूटी ऑफ एनी important personality, especially political and that kind of thing. अभी आपने बात की कि criminal behavior. So how do you exactly define criminal behavior? Criminal behavior is when you violate the laws of the ground, right? So हर मुल्क के कवानीन होते हैं. So when you break the law, so that is a criminal behavior technically. लेकिन crime जो है वो उसमें काफ़ी सारी different types होती हैं. One could be committing a crime against a person. जिसमें इसकी एग्जांपल है कि when you commit a murder, commit homicide, or child abuse, when you do rape or kidnapping, so all those kind of things are crime against a person. Similarly, when you commit a crime against a property, for example, you break into a property and do some robbery, burglary, auto theft, shoplifting, so all those are the crimes against property. And then there's another category that we call inchoate crimes. These are basically incomplete crimes, like you plan to commit a crime but you could not complete those. So you were planning or conspiring to do something but you could not complete. So that's we call it inchoate crimes. And then there's another category that we call statutory crimes. These are basically crimes, for instance, you were intoxicated and driving. So driving under the influence of drugs, driving while intoxicated, similarly selling drugs, and being intoxicated in public. So those are kind of things that falls under statutory crimes. And then we've got financial crimes. So financial crimes are we see it very commonly on the media. So the kind of crimes that NAB gets involved and politicians get involved, right? So this is basically related to finances, money, white collar crime, right? So the financial crimes fall into this category. And then we've got a very common category, we see it every day, street crime, right? Happens a lot in Karachi, happens a lot in Islamabad too now, right? So someone would come in and snatch your mobile phone, so that's street crime. Simple example of street crime, but it's not limited to only snatching of mobile phone, it's auto theft, it's also even rape, like in a public place. So and then there's another category that we call organized crime.
right? Organized crime is something, when an organization is involved, like it's a very, organized form of network of people who are, who have joined hands to commit a crime. So it could be, terrorism, it could be, a bigger crime. So that is an organized kind of crime. And then, we have got the victimless crimes. So a crime which doesn't have any victim. For instance, you use some drugs for yourself. So that is a crime for the state, but there is no victim. You yourself are a victim of that. So these are the kind of crimes commonly seen. And more recently, we also have beggary as a crime. So in Islamabad, if you are begging on the streets, it is now illegal. So you can be charged with it. I see many people, coming every day with this charge of begging in Islamabad. So that's new, and that's an attempt to get rid of the mafia who's operating all these beggars, in the Islamabad and across the country as well. So it's happening everywhere. So that's a new kind of a crime. It's illegal now. That's great to hear. अच्छा, एक चीज़ ये कि अभी आपने इस्लामाबाद का मेंशन किया कि now it's illegal in Islamabad to beg and it's considered a crime. इसी तरह इस्लामाबाद में पिछले कुछ अरसे में क्राइम की रेशो बढ़ गई है. So ऐसे कौन से क्राइम्स हैं जो आपको लगता है कि पाकिस्तान में कमिट हो रहे हैं, एंड स्पेशली इस्लामाबाद में जो रेशो बढ़ी है वो किन क्राइम्स की बढ़ी है? जब तक मैं इस सिस्टम में आया नहीं था तब तक मुझे लगता था कि मेरे नेबरहुड में क्राइम नहीं होता. सो इट्स अ वेरी कॉमन परसेप्शन. जब आपने देखा नहीं हो तो यू डोंट अंडरस्टैंड इट. सो इस्लामाबाद में हर तरह का क्राइम बढ़ा है पिछले कुछ सालों के. अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें 2018, 19, 20, इफ़ यू कंपेयर ऑल ऑफ दीज, तो इस स्टैटिस्टिक्स में इंक्रीज़ हुआ है सिग्निफिकेंट किस्म का. इसमें क्राइम अगेंस्ट पर्सन, वो जो इसमें मर्डर्स हैं, इसमें होमिसाइड है, इसमें रेप्स हैं, ठीक है, ये सारे केसेस में बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है इन द रिसेंट ईयर्स. और इसके अलावा आई थिंक जो शॉपलिफ्टिंग है इसमें और ये स्ट्रीट क्राइम है, राइट, इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज ड्रामेटिकली ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स. What are the factors which motivate a person to commit crime? कौन से ऐसे आप कहेंगे, what are the motivators? It's a very complex answer. So it could be, multiple components to it. First of all, when people say that the biology could be responsible. I mean, someone could have more testosterone, could be more aggressive, right? But जो मर्जी कहें, पूरी दुनिया में रिसर्च से ये साबित हुआ है कि biology alone cannot cause, motivate a person to commit a crime. That could be, make someone vulnerable कि हाँ, if that person gets the adequate environment along with those genes and that level of testosterone and everything, right, वो combination पूरा होगा तो फिर they are more likely to commit crime. But as such अगर आप कहें कि isolation में biology could be responsible, तो biology ऐसे responsible नहीं होती. इसके अलावा और फैक्टर्स भी हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर हम साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो इफ़ समवन डजंट हैव अ गुड चाइल्डहुड, अनहैप्पी किस्म का चाइल्डहुड था, समवन विटनेस्ड अब्यूज़ और किसी तरह से भी उसके चाइल्डहुड ट्रॉमास थे या चाइल्डहुड में उसके काफ़ी सारे इश्यूज़ थे, सो दैट कुड बी रिस्पॉन्सिबल. उसमें कोई रेज आ जाता है और उसके बाद दे वांट टू गेट रिड ऑफ इट, ऑफ दैट, और जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया दे वांट टू मेक समवन एल्स सफ़र टू. कहते हैं वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस, राइट. इफ़ यू हैव विटनेस्ड वायलेंस, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस्ड वायलेंस, और इफ़ यू हैव रिमेन्ड अ विक्टिम ऑफ वायलेंस, सो यू टेंड टू डू इट विद समवन एल्स टू, बिकॉज आप कभी उस मिजरेबल स्टेट में थे. नाउ यू फाइंड समवन एल्स हु इज़ मिजरेबल, सो यू टेंड टू टेक आउट दैट दोज रेज इनसाइड यू. सो ये चीज़ें होती हैं. और इसके अलावा आई थिंक बिहेवियरल पर्सपेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी फैमिली, राइट. सो फैमिली के अंदर आपकी किस तरह की बॉन्डिंग है, किस तरह की अटैचमेंट है आपके पेरेंट्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ कितनी इन्वॉल्वमेंट है, और क्या आपके घर में कोई बंदा डोमेस्टिक अब्यूज़ तो नहीं कर रहा, क्या आपके घर में कोई इस तरह तो नहीं है कि कोई क्रिमिनल है, कोई आपके फादर, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, राइट, समवन इन योर फैमिली हु इज़ कमिटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ क्राइम. तो ये लर्निंग वहाँ से भी हो जाती है. फर्स्ट ये चीज़ है. सेकेंड आई थिंक के जो आपके इन्वायरमेंट है, राइट. अब बच्चे ने स्कूल जाना है, उसके पीयर्स हैं, राइट, दे कुड बी स्मोकिंग, दे कुड बी यूजिंग ड्रग्स, राइट. तो ये वहाँ से भी आ सकती है चीज़ आप जिनको आप देखते हैं लोग. फिर उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका मीडिया है, ठीक है, सारा दिन आप टीवी के ऊपर देख रहे हैं, बच्चे ने किस तरह के कार्टून्स देख रहा है. फिर इनफैक्ट एडल्ट्स, तो अब वो किस तरह के प्रोग्राम्स देख रहे हैं. इज़ इट लाइक एक्सट्रीमली वायलेंट काइंड ऑफ मूवीज़, इज़ इट एक्सट्रीमली वायलेंट काइंड ऑफ कार्टून्स, और इज़ इट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आर दे वाचिंग ऑन नेटफ्लिक्स. ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है. तो अब उसका आप पे असर होता है.
फिर इसके अलावा वीडियो गेम्स, वी टॉक अबाउट इट अ लॉट ऑफ टाइम कि पबजी की वजह से जी ये हो गया, ठीक है. तो पबजी मे नॉट बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, बट येस इफ समवन स्पेंड टू मच टाइम इनटू इट, दे टेंड टू सी दैट एज अ रियलिटी. बच्चे के माइंड के अंदर वो एक गेम का इन्वायरमेंट नहीं रहता, जैसे कि अच्छा इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है. तो सब देयर आर इंस्टेंसेस जब बच्चों ने उसको अप्लाई करने की कोशिश की है रियल वर्ल्ड में और इट हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज, फैमिलीज तबाह हो गई हैं पबजी गेम की वजह से. सो लर्निंग होती है जब आप किसी चीज़ को देखते हैं. इट कुड बी मीडिया, इट कुड बी गेम्स, इट कुड बी योर फैमिली मेम्बर्स, इट कुड बी योर पीयर्स, ठीक है. तो देख के सोसाइटी से हम सीख रहे होते हैं और वो जो लर्निंग हमारे अंदर आ रही होती है, जो कंटेंट सारा गेन ग्रास्प कर रहे होते हैं सारा दिन, फिर हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. दैट इज़ व्हेन क्राइम हैपन्स. फिर इसके अलावा आई थिंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एडिक्शन का, ठीक है, ड्रग एडिक्शन. सो पीपल मतलब आई कम अक्रॉस मैनी पीपल जो बेसिकली मेथाम्फेटामिन एडिक्शन, जिसको आम अल्फाज में आइस की एडिक्शन कहा जाता है, राइट. सो जब आप आइस की एडिक्शन करते हैं तो योर मूड गेट्स एलिवेटेड, ठीक है. तो आप एक मैनिक स्टेट के अंदर जा सकते हैं, मूड आपका एलिवेटेड होता है. सो यू टेंड टू टेक रिस्क्स, यू टेंड टू इन्वॉल्व इन टेक ऑल डू ऑल काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़. उसमें गैम्बलिंग बड़ी कॉमन है, हाइपर सेक्शुअल बिहेवियर होता है, तो रेप की भी हो सकता है. फिर इसी तरह से ना, बिकॉज वो दैट पर्सन इज इन एलिवेटेड मूड, दे टेंड टू थिंक यार आई एम द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई कैन डू एनीथिंग. और वो जो फीलिंग है, उस फीलिंग के अंदर पीपल कमिट क्राइम्स. फिर इसके अलावा ड्रग इंड्यूस साइकोसिस भी होता है, ठीक है. इफ़ यू आर इनटू ड्रग्स, हेरोइन एडिक्ट हैं आप, कोई भी एडिक्शन है आपको, तो उसमें साइकोसिस के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं. वन समवन इज सफरिंग फ्रॉम सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस, इट कुड बी ड्रग इंड्यूस, इट कुड बी मेंटल इलनेस, साइकोसिस इन इटसेल्फ. तो फिर उसमें पैरानोया हो सकता है, ठीक है. जो पैरानोया है दैट बेसिकली मीन्स कि किस बंदे को किसी लोगों पे शक होता है कि ये मेरे ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहा होगा, ये मेरे ख़िलाफ़ कोई मुझे मारना चाहता है, राइट. सो इस पैरानोया के अंदर लोग कई दफ़ा क्राइम कर लेते हैं, मर्डर कर देते हैं दूसरे बंदे का, कि इससे पहले वो मुझे मारे, लेट मी मर्डर हिम, ठीक है. तो दिस कुड बी द रीज़न, वन ऑफ द रीज़न जो मेंटल इलनेस के अंदर हमने देखा है कई दफ़ा हो जाता है. फिर बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है वेरी वेरी कॉमन अमंग क्रिमिनल्स, क्योंकि इसमें मूड स्विंग्स होते हैं. यू कुड बी इन एन एलिवेटेड मूड, यू कुड बी वेरी डिप्रेस्ड. जो एलिवेटेड मूड वाला पार्ट है उसके अंदर अक्सर औकात ऐसा होता है कि पीपल टेंड टू कमिट मर्डर्स और क्राइम्स. आपने डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र किया था और आपने कहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस जहाँ पे होता है जिस घर में, द चिल्ड्रन हु विटनेस इट ऑल्सो टेंड टू लर्न इट एंड वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस. तो हमारे घरों में अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी नॉर्मलाइज किया जा चुका है डोमेस्टिक वायलेंस को, and people don't understand that it eventually leads to much worse circumstances. So how would you say that it impacted us as a society? कितना violence उस domestic violence का outcome? Domestic violence is a very common problem, जैसा कि आपने कहा, ठीक है. तो इट हैज़ इम्पैक्टेड अस सिग्निफिकेंटली, क्योंकि जो हमारी जनरेशन्स आ रही हैं हु आर एक्चुअली विटनेसिंग ऑल दैट डोमेस्टिक वायलेंस एंड चाइल्ड अब्यूज़ एंड व्हाट नॉट, राइट, इन द फैमिलीज़. पीडोफिलिया के केसेस हैं, देयर आर रेप्स हैपनिंग विद इन फैमिलीज़. सो ऑल ऑफ दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो शायद इतनी ज़्यादा मीडिया के ऊपर हाईलाइट भी नहीं होती, वो सब कुछ जब एक बच्चा देख के बड़ा होता है, राइट, सो इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन दैम. ऑल्दो इट इज़ नॉट 100% नेसेसरी कि अगर किसी बंदे ने वायलेंस कभी देखा है या एक्सपीरियंस किया है तो वो ऑल द टाइम दे वुड डू वायलेंट, बिकम वायलेंट देमसेल्व्स या क्रिमिनल बन जाएंगे बड़े होके. देयर इज़ इट्स नॉट फिक्स्ड, लेकिन ये है कि इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन दैम, ठीक है. तो अगर किसी ने इस तरह का कभी फेस किया हो तो दे आर मोर लाइकली टू गेट इन टू इट जस्ट टू टेक द रिवेंज फॉर व्हाट हैपेंड टू देम बट दे एक्सपीरियंस्ड एट सम पॉइंट इन लाइफ, राइट. तो इस वजह से उस चीज़ को कवर करना पड़ता है और वो हो जाते हैं लोगों के साथ. लेकिन ये है कि इफ़ यू टॉक अबाउट इट कि भाई हर बंदा जिसको अब्यूज़ फेस किया हो तो दे विल बिकम अब्यूज़र्स, सो इट डजंट हैपन लाइक दिस. देयर आर रिहेबिलिटेशंस, देयर इज़ ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स इफ समवन हैज़ एक्सपीरियंस्ड ट्रॉमाज इन देयर लाइफ, ठीक है. तो दे गेट हेल्प, दे कैन गेट हेल्प, or they can overcome all of that emotional burden that they have kept in themselves. So I would highly encourage everyone who has ever experienced any kind of traumas or abuse to seek professional help. So Adil, what's the social perspective of crime? How does a person fall into it, और फिर ये cycle कैसे चलता है crime का? Basically there are multiple theories to explain this. First of all, there is a theory called stain theory. Okay, it basically suggests that when a person is unable to achieve
what he or she wants to achieve in their life by socially acceptable means. So they tend to get all those things from socially unacceptable means, which is basically criminal behavior. ठीक है, अगर एक बंदा कुछ हासिल करना चाहता था शुरू से ज़िंदगी में, अब उनसे वो हो नहीं पा रहा बिकॉज उनके सर्कमस्टेंसेस नहीं है, हालात नहीं है. Someone wanted to become a doctor, they could not become a doctor, right? So अब वो रेज है, अब they want to get there but they cannot because of their circumstances. तो फिर they tend to commit crime कि मैं किसी तरह से वहाँ पहुँच जाऊँ जहाँ मैं पहुँचना चाहता था. फिर इसी तरह से एक थ्योरी है that's called social disorganization theory. ठीक है, तो दिस बेसिकली मीन्स के ऐसे इलाके, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे पुअर हाउसिंग है, जहाँ पे लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग रहते हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, राइट, वहाँ पे क्राइम का रेट ज़्यादा होता है. बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज दे लैक एक्सेस टू वेरी बेसिक थिंग्स. तो उस चीज़ों को हासिल करने के लिए दे टेंड टू कमिट क्राइम. ठीक है, बहुत सारे बच्चे इफ़ यू लुक अराउंड रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही देख लें और पूरे मुल्क में देखें तो देर आर लोकेलिटीज़ जहाँ पे इस तरह की कच्ची आबादियाँ बनी हुई हैं. सो अ लॉट ऑफ क्राइम इज़ हैपनिंग देयर क्योंकि लोगों के पास बेसिक्स नहीं हैं. जब उनके पास बेसिक्स नहीं होंगे तो दे टेंड टू ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ सम बेसिक नीड्स, उसको पूरा करने के लिए दे टेंड टू कमिट क्राइम. सो ये चीज़ होती है. इसके अलावा लेबलिंग थ्योरी एक है. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी एंड आई थिंक इट्स वेरी मच एप्लीकेबल इन आवर कंटेक्स्ट एज वेल. एक दफ़ा एक बच्चे से गलती हो गई, ठीक है, उसने चोरी कर ली या उसने कोई क्राइम कमिट कर लिया, किसी बंदे ने, छोटा सा क्राइम हो बड़ा क्राइम हो. हमारी सोसाइटी ये करती है कि वी लेबल देम राइट अवे, राइट, कि उसको लेबल कर दिया कि ये ही इज़ अ मर्डरर, ही इज़ अ थीफ, राइट, ही इज़ अ रेपिस्ट. अब बेशक चार्जेस बाद में अदालत कहे कि नहीं साबित नहीं हुए, ठीक है, तो ही इज़ लाइक एक्विट ऑफ द चार्जेस. बट डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट एक दफ़ा किसी पे चार्जेस लग जाएँ तो वी टेंड टू लेबल दैम. वो जो लेबल है दैट इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज वो बंदा कहता है ओके मैं लेबल तो हुई लेकिन आई एम अ लेबल्ड मर्डरर, सो व्हाई नॉट टू कमिट अ फ्यू मोर. फिर what prevents us from getting into crime? So that's a very interesting thing as well. It's called social control theory. आपकी अटैचमेंट्स कैसी हैं, आपकी बॉन्डिंग्स कैसी हैं अपने घर वालों के साथ, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ, आप कितने कमिटेड हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, कि आप अपना रोल प्ले करना चाहते हैं सोसाइटी में, राइट, आप कितने मोटिवेटेड हैं. फिर उसके अलावा आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है अपनी फैमिली के साथ, अपने माशरे के साथ, आप जिम्मेदारी कितनी फील करते हैं, राइट. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हेल्प अस गेट अवे फ्रॉम क्राइम. ठीक है, सोशल कंट्रोल हम इसको कहते हैं. ये हमारे वी लिव इन अ कल्चर जहाँ पे सोशल कंट्रोल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं. एंड दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन हेल्पिंग अस स्टे अवे फ्रॉम अ लॉट ऑफ क्राइम. बट डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ क्राइम इन द सोसाइटी दैट वी नीड टू वर्क आउट. हमारे साथ थे आदिल अली जो कि करेक्शनल साइकोलॉजिस्ट हैं एंड ही टॉक्ड अबाउट द रीजंस व्हाई पीपल कमिट क्राइम और सोसाइटल क्या पर्सपेक्टिव है, क्या डिफरेंट रीजंस हैं व्हाई पीपल आर into slowly getting into crimes और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में कौन से crimes जो हैं वो ज़्यादातर commit किए जाते हैं. I hope that you like this episode and we'll come back again with another one. Allah Hafiz.